Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Jai Jai Nanda Yashoda Giridharadhari Gopal Jai Jai Nanda Yashoda Jai Jai Nanda Yashoda Giridharadhari Gopal Jai Jai Nanda Yashoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hare
शिवाय जय श्री भक्तिवेदांत स्वामी की अनंत कोटि वैष्णव नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जैसे कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन जय मथुरा धाम जय जगन्नाथपुरी धाम जय श्री मायापुर धाम जय भक्ति देवी की जय वृंद देवी की जय हरि नाम संकीर्तन जय transcendental book distribution jai all glory to the Sambho devotee Hare Krishna all glory to the Sambho devotee Hare Krishna all glory to the Sambho devotee Hare Krishna all glory to Sri Guru and Sri Gauranga Namo Vishnupadaya Bhutale Srimate Namine Namaste Nirvishesh Shunyavadi Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavrinda Ki Jai Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Jagadguru Srila Prabhupada ki Jai Gaur Premanand Om Ajnantimirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurumilitam yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovishtam Sthapitam yena bhutale Swayam Rupa Kadayam Dadadi Swapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesh Gopika Kanda Radha Kanda Namostute Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Nama Om Vishnupadaya Vishnupristhaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भगवती नश्यते। Hare Krishna. This is the first time I'm here after the recent renovation in this room. I first came to this room with Gopal Krishna Goswami Maharaj in 1984. Srila Prabhupada had this room built for GBC. His room is right next to it. Right touching is his upstairs area where he used to go to bed. And he had this designed and constructed for whoever will be the GBC of Vrindavan. And devotees lived here like Bhavananda Maharaj. And in 1984, Gopal Krishna Goswami Maharaj was sent to become a GBC here. So he moved into this room. And I came with him as a servant. I was the only servant. So just about here, you see that this room is divided into two sections. There's two different roofs. So that section is where that is like a waiting area. If you come to see the GBC, there's a meeting area over here, bedroom area over there, bathroom area over there. And that was the waiting area. और नीची जो छत है, फिर वहां से एक सीढ़ी ऊपर चढ़ के ये बाकी का सेक्शन था, एक या दो सीढ़ी ऊपर चढ़ के ये बाकी का सेक्शन था। तो वहां से हम अंदर आते थे, यहाँ मीटिंग एरिया से होते इधर बेडरूम, और यहाँ पे उनका बेड था। और जब हम आए एकदम से हमारे पास और कोई भी अकोमोडेशन नहीं था, केवल यही। तो उनके बेड के नीचे जैसे ही वो पैर नीचे रखे तो उसकी एक छोटा सा कारपेट उसको वहाँ पड़ा हुआ था। उस कारपेट के ऊपर मैस हो जाया करता था। तो जैसे ही वो सुबह को उठ के पैर नीचे रखते तो वो पैर मेरे ऊपर आते हैं। हरि बोल। तो काफी दिन तक ये अरेंजमेंट रहा। उसके बाद धीरे धीरे हमें और अकोमोडेशन मिल गई और मैं उधर ब्रह्मचारी आश्रम में मूव हो गया। आप में से कौन था इस कौन में 1984 में? कोई नहीं, कोई बात नहीं। मेरी उम्र भी करीब 18-19 साल थी। अब इस बात को 40 साल हो गए। तो आज जब से ये रूम कॉन्फ्रेंस हॉल बन गया, लीगल ऑफिस बन गया, ये बन गया, वो बन गया, तब से मैं यहाँ आता हूँ साल में एक दो बारी, लेकिन इस तरफ आने का कभी मौका नहीं था। तो इस तरफ आने से वो दूसरा एंगल
और ये है मेरे सोने का याद आया कि किस तरह से हम यहाँ रहते थे। एनीवेज, आज का कृष्ण कथा में आप लोगों को हिंदी ओके, इंग्लिश दोनों मिक्स? वैसे भी मुझे ना तो अच्छी तरह से हिंदी आती है और ना अच्छी तरह से इंग्लिश आती है। तो आप नहीं भी कहोगे मिक्स तो मिक्स तो होगा। और स्लाइड्स में कुछ हिंदी में भी स्लाइड्स हैं, कुछ इंग्लिश में भी स्लाइड्स हैं, तो मैं आपके लिए ट्रांसलेशन करता रहूंगा। कोई इंग्लिश प्रेफर कर रहे हैं कि हिंदी सबको ओके है? हिंदी सबको ओके है? हाँ, तो फिर ठीक है, जितना हिंदी में रह सकते हैं हिंदी में रह जाएंगे। तो क्योंकि आज इंट्रोडक्शन है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा कृष्ण कथा के बारे में बात कर लें कि कृष्ण कथा क्यों करनी चाहिए, क्यों सुननी चाहिए, कृष्ण कथा का महत्व क्या है, क्यों सुनते हैं कृष्ण कथा, किसने किसको सुनाई शास्त्रों के अनुसार कृष्ण कथा, कब किसने किसको सुनाई, किसको क्या मिला। जैसे कि भगवत गीता और भागवतम में संबंध है। क्या संबंध है कि भगवत गीता में यम नियम बताए गए हैं और भागवतम में यह बताया गया है कि इन यम नियमों को कब, कहां, किसने, कैसे पालन किया और उसको क्या प्राप्ति हुई। और यह भी बताया गया है कि इन नियमों को, भगवत गीता में बताए गए नियमों को कब, कहां, किसने पालन नहीं किया और उसको क्या प्राप्ति हुई। तो कृष्ण कथा का सौभाग्य और कृष्ण कथा में आनंद का सौभाग्य, ये सब हम आज चर्चा करेंगे और जो कोई किसी का प्रश्न है वो ले लेंगे। सबसे पहली बात, कृष्ण कथा की इंपॉर्टेंस। चाहे कितने भी घंटे तक कृष्ण कथा हो, कितनी भी बोरिंग हो, रीडिंग हो, कैसा भी हो, लेकिन devotees don't get tired of Krishna. Some devotees do. But Srila Prabhupada, ideal for all of us, he never got tired of Krishna. एक बार की बात है, ये न्यू वृंदावन की कथा है। पहली बार श्रील प्रभुपाद बहुत बड़े ग्रुप ऑफ डिवोटीज को व्रत करवाए, एक्चुअली जन्माष्टमी। तो सुबह से व्रत शुरू हो गया, अब रात तक व्रत है। तो डिवोटीज के पेट में तो ब्रेकफास्ट का समय होते ही कुछ ना कुछ होने लगता है। तो सबने एक्स्ट्रा लॉन्ग कीर्तन किए और सब किया। जब प्रसादम होने का समय आया तो श्रील प्रभुपाद कृष्ण बुक लेके बैठ गए पढ़ने के लिए कि सब बैठ जाओ, मैं तुम्हें कृष्ण बुक पढ़ के सुनाऊं। तो एक सारा चैप्टर पढ़ लिया, भक्त एंग्शियस होके सुनते रहे। दूसरा चैप्टर पढ़ लिया, तीसरा चैप्टर पढ़ लिया, चौथा चैप्टर पढ़ लिया। तो ज्यादातर भक्त लोग नींद से लड़ते नजर आए। लेकिन उनको याद आया
कि श्रील प्रभुपाद तो भी तो हमारी तरह व्रत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमारे तो फिर भी यंग बॉडीज हैं, श्रील प्रभुपाद के तो इतनी उम्र है, और हमें तो बैठ के केवल कृष्ण कथा सुननी पड़ रही है, ये तो बता रहे हैं कितना ज्यादा एनर्जी लगता होगा, बट ही इज नॉट गेटिंग टायर्ड एंड वी आर गेटिंग टायर्ड। तो श्रील प्रभुपाद ने हमारे लिए एग्जाम्पल सेट किया, और जितने भी सिंसियर डिवोटीज हैं, they never get tired of hearing कृष्ण कथा। तो भागवतम से पहले ऐसा बताया गया है कि एक बार भगवान शिव देवी को एक अमर कथा बताने में, अमर कथा इज नोन टू बी वेरी लॉन्ग, बहुत लंबी है। तो देवी को कथा सुननी थी, और शिव जी की इच्छा नहीं थी कि ये बीच में सो जाएगी, तो उन्होंने कंडीशन दी कि लुक, मैं कथा बताऊंगा लेकिन तुझे बीच में सोना नहीं है। जैसे कि बेड टाइम स्टोरी होती है, किसी ने बताना शुरू किया और उधर से नींद आनी शुरू हुई। तो देवी पार्वती वाज यूजिंग स्टोरी। तो शिव ने कहा अच्छा ठीक है मैं बताऊंगा लेकिन सोना नहीं है, और मुझे पता रहे क्या आप सो नहीं रहे देवी, इसलिए बीच में मैं कथा बताता रहूंगा, उधर से रिस्पॉन्स आते रहना चाहिए। तो बहुत देर हो गई, शिव जी कथा सुना रहे हैं और उधर से लगातार रिस्पॉन्स आ रहा है। तो शिव जी को बहुत हैरानी हुई कि मैंने इतनी कथा सुना दी, ये देवी अभी तक सोई नहीं। ध्यान से देखा तो देवी तो सो चुकी थी। लेकिन वहां पे एक तोता बैठा हुआ था, और वो तोता बहुत ईगरली सुन रहा था, और उसको पता था कि मैंने करना बंद किया और उधर कथा बंद हो जाएगी, क्योंकि शिव ने पहले से प्रॉमिस कराया। तो ईगरली वो सुन रहा है, सुन के रिस्पॉन्ड कर रहा है, और पता चला कि देवी सो चुकी और ये एक तोता है। अब ये अमर कथा तो किसी अच्छे रेसिपिएंट को सुनाई जा सकती है, ऐसे नहीं कोई भी जीव आए और ऐसे कथा सुने। तो शिव ने तो उठा लिया अपना त्रिशूल और गए तोते के पीछे। तोता इतने में उड़ गया। तोते ने कथा सुन रखी थी तो उसको भय नहीं था अपने जीवन का, लेकिन वो तो उड़ गया। किसी ने आके बताया कि यहां की कथा तो अब एंड हो गई, अभी महर्षि वेदव्यास कथा कर रहे हैं, चलो वहां जाएंगे। तो तोता महर्षि वेदव्यास की कथा सुनने के लिए आगे चला गया। नैमिषारण्य में महर्षि वेदव्यास अपनी पत्नी को कथा बता रहे, और ये इतने ईगर जल्दी 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 भागते भागते गए, रनिंग सो फास्ट कि अपने आप को रोक भी नहीं पाए, और उनकी पत्नी का मुंह जो खुला था उसके अंदर प्रवेश कर गए। अब इस डर से कि कहीं कथा रुक नहीं जाए, फड़फड़ा नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, बिल्कुल शांत है। और ऐसा बताया जाता है
हमारे हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज जी कथा बताते हैं। श्रील प्रभुपाद ने कभी नहीं बताया, लेकिन राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि 12 साल तक वो तोता देवी के पेट में रह गया और सारी भागवतम सुन गया, समझ गया, और अब उसको मालूम है कि अगर जो मैं बाहर निकला तो मुझे माया का इफेक्ट हो जाएगा। अभी तक तो मैं पूरी तरह से कृष्ण कॉन्शियस हूं। जब एक बार जन्म हो गया तो मुझे माया नजर आएगी। ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरा घर है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, मैं और मेरा, ये सब शुरू हो जाएगा। तो एनीवे, इस तोते को कहते हैं श्री शुक्र। श्री इज राधा रानी एंड शुक्र इज द पैरट. This is so dear to Radha Rani. Radha Rani's parrot is Srila Shukdev Goswami. और ये कथा प्रहलाद महाराज के बारे में आपने सुना होगा कि इसी तरह से प्रहलाद महाराज ने भी अपनी माता के गर्भ में भगवत कथा सुनी थी। इसलिए 5 साल की उम्र में तो प्रहलाद महाराज के लिए स्वयं नरसिंहदेव भगवान प्रकट हो गए और उनकी भक्ति का पूरे एग्जाम में वो पास हो गए। भगवान उनके लिए स्वयं प्रकट होकर आए। तो ये भक्ति उनकी वो 5 साल की नहीं थी, वो भक्ति उनकी कथा सुनने से पहले से शुरू हुई। जैसे कि आप जानते हो, शायद जानते हो, शायद नहीं भी जानते, यहाँ पे ब्रजधाम में ही एक नारद ऋषि का आश्रम है। कौन कौन जानता है नारद आश्रम? एक तो मुझे खाली जानते। तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे, अगली बार उधर जाओगे तो जाए हम। जब राधा कुंड से आप उधर की परिक्रमा करके राधा कुंड आ रहे हो, राधा कुंड की परिक्रमा करके अब आगे आ गए इधर कुसुम सरोवर, तो कुसुम सरोवर से थोड़ा सा ही आगे अदर साइड ऑफ द रोड, लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, राइट साइड ऑफ द रोड पे कुसुम सरोवर है। कुसुम सरोवर क्रॉस करते ही लेफ्ट साइड को गली मुड़ती है और उस गली के एंड में जाके नारद आश्रम है। नारद आश्रम बहुत बड़ा नारद कुंड है। अभी उसको बहुत सुंदर बनाया गया है, बिल्कुल रमणीय स्थान है फ्रॉम ऑल एंगल्स। और वो स्थान है जो नारद मुनि का रियल स्थान है। जैसे कि मथुरा में विश्राम घाट है। क्यों है विश्राम घाट? विश्राम घाट को विश्राम घाट क्यों कहते हैं? कृष्ण ने कंस को मार के विश्राम घाट पे विश्राम किया था। क्यों किया था कृष्ण ने कंस को मार के विश्राम घाट पे विश्राम? क्योंकि नरसिंहदेव भगवान ने भी हिरण्यकश्यप को मार के विश्राम करने के लिए इसी विश्राम घाट पे आए। तो कृष्ण ने वहां पे कंस को मार के विश्राम किया, उससे पहले से ही वो विश्राम घाट था। और उस विश्राम घाट के पास आज भी वो मैंने नरसिंहदेव भगवान कहा, वराहदेव, लॉर्ड वराह हिरण्याक्ष का वध करके विश्राम घाट पे विश्राम करने के लिए आए थे। और लॉर्ड वराह का मंदिर आज भी विश्राम घाट पे है। तो इससे पहले कि कृष्ण वहां विश्राम के लिए गए, पहले से ही विश्राम घाट था।
सतयुग से युगों युगों से वो विश्राम है। तो उसी तरह से ये जो ब्रजधाम है ये एक तरह से आध्यात्म की राजधानी है। और ये आध्यात्म की राजधानी केवल तब से नहीं है जब से कृष्ण यहां आए, उससे पहले से ही। आपने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के नामों में सुना होगा दुर्वासा। दुर्वासा का भी जो मेन हेडक्वार्टर है वो ब्रज में ही है, और नारद मुनि का भी मेन हेडक्वार्टर ब्रज में ही है। ये पर्सनालिटीज ऐसी हैं कि इनका घर क्या और क्या ये तो अपने मन की गति से चलते हैं, कहीं भी जाते हैं, कहीं भी आते हैं, किसी भी लोक में, किसी भी प्लैनेटरी सिस्टम में इनको सब जगह ओपन पासपोर्ट है। लेकिन फिर भी इन सब के हेडक्वार्टर होते हैं, और नारद मुनि का भी हेडक्वार्टर यही है जो स्थान मैंने आपको बताया। दुर्वासा का भी हेडक्वार्टर ये दूसरी तरफ है, इधर जहाँ मानसरोवर है, मानसरोवर वाले एरिया में, वहाँ पे महर्षि दुर्वासा का है। तो जब ये कथा तो आपने सबने सुन रखी है कि जब हिरण्यकश्यप चले गए तपस्या के लिए, तो देवी देवताओं को पता चला कि उसकी पत्नी कयादु प्रेग्नेंट। तो उन्होंने अपने आप से यह निर्णय किया कि इसके पेट में हिरण्यकश्यप की संतान है, वो बाहर आके हिरण्यकश्यप वाला ही काम करेगी। तो इसलिए पहले से ही उस संतान को ठिकाने लगा दें, और इसलिए उन्होंने आके कयादु का हरण कर लिया। कयादु का हरण कर लिया, तो करने गए तो नारद मुनि ने जाके कयादु को बचा लिया। नारद मुनि ने एग्जाम्पल रखने के लिए कि जब तक कोई बालक पैदा नहीं हुआ आप कैसे कह सकते हो कि ये क्या होने वाला है। जब तक पैदा नहीं हुआ, यही गलती भीष्म पितामह ने की थी। भीष्म पितामह ने भीष्म प्रतिज्ञा क्यों की? क्योंकि सत्यवती के पिता चाहते थे कि सत्यवती का जो पुत्र हो वो राजा बने। अब उस पुत्र का जन्म ही नहीं हुआ, वो कितना केपेबल होगा कौन जानता है? कोई नहीं जानता। तो किसी को केवल जन्म के आधार पे राज सिंहासन नहीं मिलना चाहिए, कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। किसी भी राजा के ज्यादातर के एक पुत्र नहीं होता, कितने सारे होते हैं, उसमें से जो सबसे केपेबल होता है वो पुत्र वो राजा बनता है। और धर्म तो ये है कि अगर राजा के पुत्रों में से कोई भी राजा बनने के योग्य नहीं है, तो फिर राज्य के किसी दूसरे व्यक्ति को राज सिंहासन देना चाहिए जो उसके योग्य है। लेकिन भीष्म पितामह ने ये राज सिंहासन हस्तिनापुर का किसको दे दिया? जो भी जन्म ही नहीं दिया, जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसको प्रेजुडिस कर दिया। उसी तरह से देवी देवताओं ने कयादु पे ये लांछन लगा दिया कि इसके पेट से हिरण्यकश्यप की संतान होगी, सांप का सपोला होगा, उसको मार देना चाहिए। और इस एग्जाम्पल को ठीक करने के लिए नारद मुनि ने कहा नहीं, उसको जन्म लेने दो। अगर जो तुम्हें लगता है कि वो राक्षस होगा, तुम्हें लगता है जो कुछ भी होगा, फिर देखी जाएगी। फिलहाल मैं तुम्हें इस स्त्री पे अत्याचार करने नहीं दूंगा, ये मेरे आश्रम में सुरक्षित रहे। कयादु को वृंदावन ले आए, गोवर्धन के पास, जहां उनका आश्रम है, नारद आश्रम। तो वहां पे अभी भी आज भी कयादु के साथ में उनका मंदिर है। कयादु वहां पे बैठ के उनकी कथा सुनते। तो आश्रमों में यही होता है, जैसे ये आश्रम है, क्या होता है यहाँ रोज सुबह भागवतम होती है। तो ऐसे ही वहां पे आश्रम में कयादु को आश्रम में रहने वाली स्त्रियों में मिक्स कर दिया गया, रोज सुबह को भागवतम
क्लास के लिए आना। और ये तो नारद मुनि की भागवतम क्लास है। अभी यहां 1-1.5 घंटे होती है, तो नारद मुनि की तो भागवतम क्लास कई घंटे चलती थी। तो रोज प्रहलाद महाराज नारद मुनि से भागवतम सुनाते। तो वो सुनते 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 थे तो राक्षस के पुत्र, मां भी राक्षसी, पिता भी राक्षस, लेकिन बन गए प्रहलाद महाराज। हरि बोल। तो प्रभाव किसका पड़ा? कथा का। It was the katha that shifted, converted him from a राक्षस। किसी भी तरह से कुछ लोगों की मिक्स्ड बर्थ होता है, जैसे रावण, क्या कहा जाता है? ब्राह्मण की संतान था। हाँ ठीक है, ब्राह्मण की संतान था, ब्राह्मण तो राक्षस नहीं, मां तो राक्षसी थी। रावण की मां राक्षसी थी, पिता विश्रवा थे, ब्रह्मा के डायरेक्ट पौत्र थे, बहुत हाईली एलिवेटेड तपस्वी थे, ज्ञानी थे, स्कॉलर थे, सब कुछ था, लेकिन मां तो राक्षसी थी। लेकिन प्रहलाद महाराज, माता पिता दोनों राक्षस थे, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज हो गए। किस वजह से? भागवत कथा रोज सुनने की वजह से, रोज भागवतम श्रवण की वजह से। राक्षस भी प्रहलाद हो गए। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा है, जो कोई भी इस्कॉन में आए, कुछ भी करे नहीं करे, रोज भागवतम जरूर सुने। अगर जो ये भागवतम एक राक्षस को प्रहलाद बना सकती है, तो फिर हमारा तो ये क्या ही करेगी। ये कथा का महत्व है। उसी तरह से ध्रुव महाराज ने तो 5 महीने में सुप्रीम लॉर्ड को प्राप्त कर लिया। भगवान के दर्शन, साक्षात दर्शन 5 महीने में। क्यों? नारद मुनि ने उनको गाइड किया, नारद मुनि ने उनकी परीक्षा ली, उनको पढ़ाया, बताया, समझाया, और ध्रुव महाराज परफेक्ट हो गए। महाराज खटवंगा, भागवतम में महाराज खटवंगा की कथा आती है। 24 मिनट में उन्होंने he attained the supreme in 24 minutes। महाराज खटवंगा जो बहुत बड़े भक्त थे, बहुत शक्ति थी उनमें, भक्ति की शक्ति भी और बल भी, मटेरियली भी बहुत शक्तिशाली, और देवी देवताओं की मदद के लिए स्वर्ग में गए हुए थे। अब कितने साल हो गए युद्ध करते करते, स्वर्ग में रहते रहते, एक दिन उनको याद आया कि अरे आप लोग तो सब देवता लोग हो, जरा देख के बताओ मेरे जीवन में क्या बाकी है। उनको पता है कि आपके 24 मिनट बाकी है। मुझे अभी वापस पृथ्वी पे भेज दो, और बिल्कुल भगवान में ध्यान लगा के भगवान को अपने हृदय में इस तरह से स्थापित करके 24 मिनट में वो, क्यों? क्योंकि पहले वो सब भक्ति की हुई थी। ऐसे नहीं कि कोई भी आदमी ऐसे उसको पता चल जाएगा और 24 मिनट वो भगवान में ध्यान लगा देगा, नहीं हो सकता। पहले से उन्होंने खूब भागवतम की हुई। तो हम लोगों के लिए, हम यहाँ भक्ति के लिए आए, और भक्ति की परिभाषा या भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सीधा साधा रास्ता बताया गया है। नवदा भक्ति, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम,
पारसेवनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। तो इसमें जो श्रवण है वो खाली ऐसे ही पहला नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया है। श्रील प्रभुपाद ने भी कहा है श्रवण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भगवान ने इसलिए हमें 2 कान दिए और 1 मुंह। सुनो ज्यादा, और ऐसा नहीं कि इस कान से अंदर और इस कान से बाहर, दोनों कान से अंदर रख लेना है जब कृष्ण कथा मिले तो भक्ति बहुत भाग्य से मिलती है और कथा बहुत भाग्य से मिलती है। हजारों लाखों जन्मों के भाग्य जागते हैं तो हमें कृष्ण कथा सुनने को मिलती है। नहीं तो कहां क्या मिल रहा है इस संसार में? कृष्ण कथा कहीं मिल रही है? कितने सारे टीवी के चैनल चले हुए हैं, कितने सारे यूट्यूब पे चीजें चली हुई हैं। अभी तो बहुत सारे आपको इस्कॉन की तरह भी दिखने वाले मिल जाएंगे जो सब कुछ करते लेकिन कृष्ण कथा नहीं करते। सब कुछ करेंगे, मोटिवेशन, दुनिया भर की चीजें, लेकिन कृष्ण कथा, भगवान का नाम लेने से दूर रहते। लाखों करोड़ों उनके व्यूज आते हैं और डिवोटीज भी शेयर करते हैं और बिल्कुल डिवोटी दिखते हैं। वही तिलक लगाया हुआ और सब कुछ, माला थैली नहीं टांगेंगे, भगवान का नाम नहीं लेंगे, भगवान की कथा नहीं करेंगे और दुनिया भर के मोटिवेशन की चीज बताएंगे। ये सब तो अगर हमें कृष्ण कथा सुन के उसमें आनंद आ रहा है तो और भी ज्यादा हमारे भाग्य जाग रहे हैं। हजारों करोड़ों जन्मों के सुकृति जो है वो जाग रही है, कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। और अगर हमें विश्वास हो रहा है सुन के, बहुत से लोग सुनते तो हैं लेकिन उनको उससे उल्टा समझ में आता है, या ये समझ में आता है कि ये ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, ये कथा में रॉन्ग क्या है, भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं, देवकी के गर्भ में से निकल के रोहिणी के गर्भ में कैसे जा सकते हैं, ये तो नहीं हो सकता। कुछ लोगों का कथा सुनने के बाद भी कंसंट्रेशन ज्यादा इस बात में रहता है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। और अगर हमारा कंसंट्रेशन इस बात में कि ऐसा कितना सुंदर है, भगवान क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते। जैसे वो एक चमार था, कॉबलर, श्रील प्रभुपाद उसकी कथा बताते हैं कि उस कॉबलर को ये विश्वास था कि भगवान कुछ भी कर सकते। तो जब उसको आके नारद मुनि ने बताया कि जब मैं भगवान को मिला तो वो सुई के छेद में से हाथी निकाल गए, सुई के छेद में से हाथी निकाल गए। तो कॉबलर ने बिलीव कर लिया, चलो हाँ। तो नारद मुनि ने कहा अच्छा आप रियली मानते हो मेरी बात? कैसे आप मान सकते हो कि एक सुई के छेद में से हाथी निकल जाएगा? कहता है देखो, मैं ये बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हूं, इस बरगद के पेड़ के नीचे इतने छोटे छोटे टाइनी बीज होते हैं, तो बरगद के ऐसे उंगली से पकड़ो तो पकड़ में भी नहीं आएगा, इतना छोटा बीज होता है। वो बीज उगता नहीं है, बरगद के नीचे जितने बीज गिरे हैं वो सारे उग गए तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। वो बीज उगता नहीं है,
लेकिन हर कोई बीज उसमें से उगने की क्षमता रखता है। हर कोई बीज वो पूरा बीज है। कब उगता है वो बीज? किसी को मालूम? वो बीज कब उगेगा? हर बीज नहीं उगेगा, कोई बीज उगेगा। कब उगेगा? कौन सा उगेगा? किसी को नहीं मालूम। हाँ? हमने सुन रखा है कि पंछी से आते हैं और उसके बीज से उस बीज को चिड़िया खाएगी। जब चिड़िया खाएगी, चिड़िया तो सैकड़ों बीज खा जाएगी, लेकिन ज्यादातर बीजों को खाने में चिड़िया तोड़ देगी, क्रश कर देगी, कट कर देगी। जो बीज कट हो गया चिड़िया से वो नहीं उगेगा। लेकिन जो बीज चिड़िया जल्दी जल्दी में साबुत निकल जाएगी, उसको साबुत निकाल देगी। जब वो चिड़िया के पेट में से बाहर निकलेगा तो वो बीज उगेगा, नहीं तो नहीं उगेगा। आप लाखों करोड़ों बीज रख लो, बरगद के, पीपल के, कोई नहीं उगेगा। चिड़िया खा लेगी, जब वो निकलेगी तो। लेकिन उन सब बीजों में उगने की क्षमता है। तो कॉबलर कह रहा है, चमार कह रहा है, चमार कहते क्या कैसे? मोची मोची कह रहा है कि जब इतने छोटे से बीज में भगवान इतना बड़ा बरगद का पेड़ पैक कर सकते हैं, तो फिर सुई का छेद तो बहुत बड़ा होता है, हाथी तो बहुत छोटा है इस बरगद के पेड़ से। तो विश्वास करने का कारण है उसका, ये सौभाग्य है। अगर जो हमें विश्वास हो रहा है तो हमें ये हमारा सौभाग्य है। तो कुछ लोग इस पे कहते हैं, मैं ये कथा करता हूं तो, कि प्रभु जी हमें तो बचपन से कथा में आनंद आता है, हमें तो कथा बहुत अच्छी लगती है, बचपन से ही हमें खूब कथा में ही आनंद आता है। करवा चौथ की कथा है, कभी कोई की कथा है, कभी इसकी कथा है, कभी उसकी कथा है। लेकिन ये जो कथाएं हैं, ये कथाएं मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए कहीं और सुनी जाती है। वो कृष्ण कथा नहीं है। मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए वो कथाएं कहीं और सुनी जाती हैं और लोगों को अच्छी लगती है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनसे कभी कोई भक्त नहीं बना। सारा जीवन सुन सुन के वो कथाएं निकल जाएगा, भक्त कोई नहीं बनेगा उससे। तो उन कथाओं को सुनने के लिए कोई खास सुकृति नहीं चाहिए। भगवत कथा सुनने के लिए, जिससे आपको यहां कोई प्रॉमिस नहीं किया जा रहा कि कल से आपके भाग्य उदय हो जाएंगे, कल से आपको बहुत अच्छी न्यूज आएगी, आपके बैंक में एक्स्ट्रा पैसा आ जाएगा, या फिर कोई प्रॉमिस नहीं है कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये है कृष्ण कथा, जिसको सुनने के लिए, उसमें हमारा इंटरेस्ट होने के लिए बहुत सारी सुकृति चाहिए। जो मनवांछित फल प्राप्त करने वाली कथा है, उसके लिए कोई कुछ खास सुकृति की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि ये हाथ में ये धागा बांध लो, हर मनोकामना पूरी हो। ये सब, लेकिन फिर भी हम कथाओं में एक चुटुक विनायक की कथा एंड में जोड़ देते हैं। आपने सुनी कभी चुटुक विनायक कथा? चुटुक विनायक की कथा नहीं सुनी? आपने कभी चुटुक विनायक कथा नहीं सुनी? किसी ने नहीं सुनी? ओ,
चलो आपको आज चुटुक बिनाई कथा सुना दो। चुटुक बिनाई इज कृष्ण, बेबी कृष्ण, स्मॉल कृष्ण, यंग कृष्ण। लेकिन चुटुक बिनाई मतलब छोटे कृष्ण एक गली मोहल्ले में गांव में लोगों को टेस्ट करने के लिए कौन यहां भक्त है और कौन लालची है, वो घूमते। तो उनके पास एक छोटी सी कुलिया है। कुलिया समझते हैं? छोटी सी कुलिया, और उनके मुट्ठी में थोड़े से चावल। तो सारे गली मोहल्ले में घूम रहे, कोई मेरी खीर पका दो, कोई मेरी खीर पका दो, कोई मेरी खीर पका दो। तो लोग देखे इसकी कुलिया में इतना सा दूध है, इसकी मुट्ठी में इतने से चावल है, इसकी क्या खीर बनेगी। तो कोई मानता नहीं। लेकिन एक वृद्धा जिसमें श्रद्धा थी, सुकृति उसकी जाग गई, स्वयं भी बहुत निर्धन थी, कुछ नहीं था उसके पास, लेकिन फिर भी कहती है चल, ये बालक बेचारा चुटुक बिनाए सबसे पूछ रहा है, मांग रहा है, मैं इसको बुला के इसकी खीर बना दी। तो उसने अपने घर में जो पुराना टूटा बर्तन छोटा सा था वो रख लिया हाथ पे, कहा चल ला तेरा इसमें चावल और तेरा कुलिया का दूध इसमें डाल देते हैं, इसको पकाएंगे। तो उसमें डाला, वो तो भगवान कृष्ण का है, वो बढ़ना शुरू हो गया। अब वो बर्तन में ठहर नहीं रहा, तो बड़ा बर्तन रखा, बड़ा बर्तन रखा, बड़ा बर्तन रखा। वो आउट ऑफ बर्तन के तो बहुत ज्यादा है। तो पड़ोसन के गई कि कोई बड़ा बर्तन दो, मेरे घर में खीर पक रही है। अच्छा, इस निर्धन वृद्धा के घर में इतनी खीर पक रही है, मेरा बड़ा वाला बर्तन लेने। तो शी इज कीपिंग एन आई ऑन दिस माता जी, और रात को खूब खीर पकाई, खूब खीर पकाई, खूब खीर पकाई। और चुटुक बिनाई ने को बड़ी श्रद्धा से ये वृद्धा ने खूब खीर खिलाई, खूब खाओ, खूब खाओ, खूब खाई। और बहुत रात हो गई, तो माता जी ने कहा बेटा तू आज यहीं रह जा, कहाँ जाएगा, यहीं रह। तो रात को खूब खीर खाई थी, खूब पेट भर गया। तो चुटुक बिनाई को रात को पॉटी आई, ये मुझे तो जाना है। तो माता ने कहा कहाँ जाएगा इतनी रात को, तो यही मेरे घर में ही कर लो। तो उसने घर में ही सब जगह, इधर उधर सब जगह उसका घर को सारे को पॉटी से भर दिया। अब वो कहे अच्छा अब मैं साफ कैसे करूंगी, कुछ जल नहीं है, कुछ कपड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, ये ले मेरे बाल, मेरे बालों से पोंछ। तो सब कुछ हो गया, सो गई। सुबह को उठी तो देखा जहां जहां चुटुक बिनाई पॉटी करके गए उससे सब गोल्ड हो गया। बच्चों की पॉटी वैसे भी कभी कभी गोल्ड के कलर की नजर आती है, लेकिन वो तो सब रियल गोल्ड हो गया। अब अड़ोस पड़ोस में सबको पता चल गया कि ये वृद्धा के घर में, माता जी के घर में तो वो चुटुक बिनाई जो आया था वो माला माल कर गया है। तो उस बेचारी को तो कोई उसमें ममता नहीं है, माया नहीं है, लेकिन दूसरी स्त्रियों को तो, और स्त्रियां जो लालची हैं वेट कर रही हैं कब चुटुक बिनाई आए और कब हम।
तो चुटुक बनाए आए और एक माता जी ने बुला दिया कि आ जाओ, मैं बनाऊंगी आपको। लेकिन इंटेंशन रॉन्ग है। तो पहले से ही बड़ा वाला पॉट निकाला, इतना सा दूध डालने की और इतना सा, तो बड़ा वाला पॉट निकाला और उसमें थोड़ा सा कुलिया का दूध डाला और थोड़े से चावल डाले, तो सब जल गए, खत्म हो गए। तो अब वो औरत उसको कहती है, लल्ला ये तो तेरे तो सब जल गए। कि हाँ जल तो गए, कोई बात नहीं, अब मैं जाऊं। नहीं नहीं रहने दे, तो यहीं रह जाए। तो उसने कहा ठीक है। रात को लल्ला ने कहा, अब मुझे तो पॉटी आ रही है। तो पॉटी आ, दैट्स गुड न्यूज। बेटा तू यही कर ले। तो इन एनी केस यू अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ द स्टोरी कि हमारी इंटेंशन जो है वो अगर माया के पीछे भागने की होगी, वो भौतिक सुख, वो भौतिक लाभ, वो हर भौतिक चीज हमें चाहिए जो हम यहीं छोड़ के जाने वाले हैं, तो अगर वो हमें प्राप्त भी हो गई तो क्या होगा? छोड़ के तो उसको यहां जाए। तो अगर जो कृष्ण को प्राप्त करना है, कृष्ण कृपा प्राप्त करनी है, तो हमें इंटरेस्ट उस भौतिकता में नहीं, हमारा इंटरेस्ट जो है वो आध्यात्मिकता में होना चाहिए। जिसका इंटरेस्ट आध्यात्मिकता में है उसको कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। जैसे आजकल कहते हैं कि नया सॉन्ग निकला है ना, आपने सुना? कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे, कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे। तो इन ऑर्डर टू चैंट द नेम ऑफ कृष्णा यू नीड कृष्ण कृपा। जो शुद्ध मन से, जो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान का कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए जो कोई भक्ति में आगे बढ़ रहा है, तो वो लॉन्ग वे जाएगा। और जिसको शॉर्ट टर्म गेन चाहिए वो तो शॉर्ट टर्म गेन पाए। वो शॉर्ट टर्म गेन अपने साथ में ले नहीं जा पाएगा, उसको छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए जो भक्त होते हैं वो ये सब चीज में इंटरेस्टेड नहीं है। मनोकामना पूरी होगी, मनोकामना पूरी होगी और सारी मनोकामनाएं पूरी हो भी गई तो क्या मिला? इसलिए आपको गोलोक वृंदावन के मूड में लाने के लिए गोलोक में क्या होता है? ये जो भक्ति है इसमें बहुत ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 3 तरीके का ज्ञान हमें फिर भी चाहिए। एक संबंध ज्ञान, मतलब कि भगवान से हमारा रिलेशन क्या है। दूसरा प्रयोजन ज्ञान, मेरा गोल क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ माई लाइफ। और तीसरा ज्ञान, मैं यहां पे हूं, संबंध
मुझे मेरी स्थिति पता चल गई, अब मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे कहाँ जाना है। तीसरा ज्ञान है अभिधेय ज्ञान, यहां से यहां कैसे जाना। अभिधेय जो है वो हम रोज प्रैक्टिस करते हैं, सुबह 4:30 बजे से जो कुछ भी हम कर रहे हैं दिन की प्रैक्टिस, वो अभिधेय है। जो संबंध है वो हम बार बार भगवद गीता की क्लास में आके, भागवतम की क्लास में आके वो संबंध समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपके चारों तरफ ये सब तस्वीरें लगी हुई हैं, ये सब आपको प्रयोजन दिखाती है। प्रयोजन क्या है? ये कहां जाना है मुझे? यहां जाना है। कहां जाना है मुझे? वहां जाना है। कहां जाना है मुझे? वहां जाना है। हम लोग अपने परिवार की, अपने बुजुर्गों की फोटोज लगा लगा के रखते हैं दीवार पे। वो शायद उनका प्रयोजन होगा, भक्तों का प्रयोजन ये है, हम ये दीवार पे लगा के रखते हैं। हमारा ये ड्रीम है, दिस इज वेयर वी वांट टू गो, दिस इज आवर गोल, दिस इज आवर प्रयोजन। तो ये गोलोक वृंदावन हमारा प्रयोजन है, वहां हम जाना चाहते हैं। यहां से आगे कथा आपको कल बताएंगे। किसी अब कोई प्रश्न हो तो ले लेते हैं। प्रभु जी, यस, हरे कृष्णा। मैं जो बोलूंगा हरे कृष्णा। धन्यवाद। आप कैच कर लेना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा कोशिश कर लूंगा, मुझे अकल कम है। जैसे नहीं, आप बहुत बढ़िया। अकबर बिरबल हो गए, हम बचपन से जो स्कूल कॉलेज पढ़ते हैं तो तभी तो हम हिंदी इंग्लिश जानते हैं, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ पाए। हाँ। तो ये जो जैसे गीता प्रेस हो गया, प्रभुपाद ने भी इस्कॉन भागवतम उसको बेस बना के फिर दूसरे आचार्यों के भी टिप्पणी वगैरह सब फिर प्रभुपाद ने वो किया। हाँ। तो इस्कॉन तो हम समझते हैं वेरी पावरफुल, लेकिन ये बाहर की चीजें कितनी इरेलेवेंट है। क्या जैसे आपने बताया कि वो जो मनोरंजक का पंछी वो कहानियाँ जो भी आप कह रहे थे वो इतना मनोवांछित फल देती है, लेकिन भक्ति नहीं देती। तो लेकिन जैसे शनि हो गया या राहु केतु की जो कहानी, और मैं समझ गया आपकी बात, मोहिनी की लीला, मैं समझ गया आपकी बात। हाँ, तो ये सब चीजें, इनकी हम बुराई नहीं करते, लेकिन हम इनको अल्टीमेट भी नहीं मानते। राइट? क्या है कि भक्ति इज नॉट फॉर जो अभी तमस में है, रजस में है, अभी उससे उठ नहीं पाया, अभी सत्व में भी सही तरह से नहीं है, तो उन लोगों को ये सब चीजें उठा के कम से कम सत्व तक लाती हैं। राइट? तो हम भक्ति में फिर उनको सत्व से उठा लेते हैं। तो जैसे कि कहा जा सकता है कि एलिमेंट्री एजुकेशन इज नॉट योर अल्टीमेट गोल, राइट? लेकिन फिर भी एलिमेंट्री एजुकेशन के बिना सेकेंडरी कैसे आएगी और उसके पोस्ट सेकेंडरी कैसे आएगी? बिल्डिंग ब्लॉक तो वो है। तो मी फॉर वन, मैं ये मानता हूं कि जैसे कि सत्यनारायण की कथा है, लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, उसका बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा इफेक्ट है। उसकी वजह से हम जिस किसी को प्रसाद देते हैं, प्रसाद कह के, वो कभी हमें ना नहीं करता, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। जो कोई भी धर्म, जो कोई भी चीजें कम से कम सात्विकता सिखा रही हैं, आई फॉर वन अप्रिशिएट दैम। चाहे वो अभी भक्ति में जैसे कि राधा स्वामी हो गए, वो बालों वाले साईं बाबा हो गए, एटलीस्ट ये लोग सात्विक हैं। जो सात्विक नहीं है, आई डोंट टॉलरेट देम। जो कम से कम सात्विक हैं, वो
एटलीस्ट अ बिल्डिंग ब्लॉक है. आई अप्रिशिएट them. I still don't call them भक्ति. भक्ति वो फिर भी नहीं है, लेकिन मैं कभी उनकी बुराई नहीं करता. अब आपको रोटी कपड़ा और मकान है, राइट? आपको भगवान ने रोटी कपड़ा और मकान की कमी की हुई है, और आप जाके भगवान से रोटी कपड़ा और मकान मांग रहे हो. आई एम नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज, क्योंकि अगर भगवान से नहीं मांगोगे, आपको रोटी कपड़ा और मकान की कमी की हुई है भगवान ने, किससे मांगोगे? या तो भगवान के आगे हाथ फैलाओगे, नहीं तो किसी और के आगे हाथ फैलाओगे. उससे अच्छा है भगवान के आगे हाथ फैलाओगे, राइट? लेकिन प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यहां है कि भगवान ने रोटी कपड़ा और मकान की आपकी बहुत लंबे समय के लिए अरेंजमेंट किया हुआ है, फिर भी आप वहीं के वहीं अटके हो. फिर भी आप रोज भगवान से कह रहे हो गॉड गिव अस माय डेली ब्रेड. फिर भी आपको सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का. उसमें कुछ बुराई नहीं है, लेकिन जब ऑलरेडी आपको भगवान ने का दिया सब कुछ है, तो फिर क्यों? कहां से कितना सुख आ जाएगा? कितनी संपत्ति अभी आपको और चाहिए? इतनी भगवान ने दी है कि खाते खाते खत्म नहीं होगी, फिर भी मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए. दैट इज द इश्यू. ठीक है? यस. जैसे अगर हम फॉलो तो प्रोसेस तो भक्ति का कर रहे हैं, डिवोशन सर्विस के जो हमारे अंग हैं उनको फॉलो कर रहे हैं मैकेनिकली, बट डिजायर्स अभी भी हमारी वही मेटेरियलिस्टिक बनी हुई है. मतलब हम अभी इस हिस्ट्री को एंजॉय करना चाहते हैं और काफ़ी चीज़ें सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, तो वो भक्ति कहलाएगी या क्या? उसको नहीं, प्रोसेस भक्ति का फॉलो कर रहे हैं, डिजायर्स अभी भी सर्विंग की नहीं है, ज़्यादा उसको एंजॉयमेंट की जाता है. शुद्ध भक्ति तो नहीं है. अब क्या है कि कम से कम भक्ति का प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, कम से कम सात्विक हो. सबसे बड़ी बात क्या है? अनर्थ निवृत्ति, राइट? सेकंड इज गिविंग अप ऑफ टू मच मटेरियलिज्म. अगर जो शुद्ध भक्ति नहीं भी अभी हो रही, तो कम से कम सुबह शाम क्लास में आके शुद्ध भक्ति के बारे में सीखते रहो और किसी ना किसी तरह से उस तरफ बढ़ने की. तब तक भक्ति में ही टिके रहो. ये नहीं कि मैं आपकी भक्ति को ही सत्यानाश कर दूं, आप फिर क्लास में ही आने से घबराओ कि ये तो मैं तो कुछ भी नहीं, प्रभु जी ने मेरे बिल्कुल उखाड़ दिया, मैं तो राइट. तो उस तरह से मैं तो लिबरल हूं. जो शुद्ध भक्ति है वो शुद्ध भक्ति है, जो मिश्र भक्ति है वो मिश्र भक्ति है, जो नियोफाइट की भक्ति है वो नियोफाइट की भक्ति है. वो है सो है. और अगर मैं फिर भी कहता हूं किसी को रोटी की कमी हो रही है, रोटी कपड़ा और मकान की कमी हो रही है, वो भगवान से मांग रहा है, तो उसको कैसे ब्लेम कर सकते हैं? वो तो उसका मांगने का बनता है. लेकिन जिसको भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, वो भी सारा दिन यही मांग रहा है, तो वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है. क्योंकि और उसको भगवान ने और दे दिया 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 दे दिया. सामान 100 बरस का है, 2 पल की खबर नहीं, और जीवन उसी में बीत जाएगा. दैट इज द इश्यू. तो जब तक अगर शुद्ध भक्ति नहीं भी हो रही, कोई बात नहीं, कीप चैंटिंग योर नाम. बिग थिंग इज अनर्थ निवृत्ति. पाप बंद, पाप बंद किया और चैंटिंग द होली नेम. कम से कम इतना तो. एनी अदर क्वेश्चन? ओह, थैंक यू.